Good morning, students. Students, we are studying application of integrals. In the previous lectures, we have studied how we can find area under simple curves. Now today, we will see how we can find area bounded by a curve and a line. So let's start. Area between a line and a curve. So we have a question here. You will understand the process by solving this question. Find the area of the region bounded by the curve y square is equal to x and the lines x is equal to 1, x is equal to 4 and the x axis in the first quadrant. तो यहाँ पर क्या गिवन है, हमको एक कर्व गिवन है y square is equal to x और दो लाइंस गिवन है x is equal to 1 और x is equal to 4 और x axis. इनके बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो हमको फाइंड करना है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो y square is equal to x क्या है? It represents a parabola with axis as x axis. तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए और इसके लिए आपको हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, ये जो सिंपल कर्व्स हैं इनके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए. So this is our coordinate axis and y square is equal to x. It represents this parabola. Now we have two lines, x is equal to 1 and x is equal to 4. Suppose here x is 1, so line x equal to 1 will be parallel to y axis and will pass through this point. X is equal to 1. So this line represents x is equal to 1 and x is equal to 4 will be somewhere at this point, and we have to find the area between this curve y square is equal to x is equal to 1 and x is equal to 4 and x axis. So the required region is this region. We have to find this area. Now since we want to find the area between this curve and the x axis, so we will draw strips parallel to y axis. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें एरिया फाइंड करना है कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में तो हम स्ट्रिप्स ड्रॉ करते थे पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो यहाँ पर क्योंकि हमको एरिया फाइंड करना है बिटवीन द गिवन कर्व एंड एक्स एक्सिस, इसीलिए हम स्ट्रिप्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस. और सपोज दैट द विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप इज dx. इसकी जो है विड्थ dx है और इसकी हाइट जो है सपोज कर लेते हैं y है. तो क्योंकि ये स्ट्रिप रेक्टेंगुलर है, क्योंकि बहुत ही फाइन स्ट्रिप है, तो इसका एरिया जो होगा एलिमेंट्री एरिया वो क्या हो जाएगा, dA इज इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू विड्थ y dx. Now we will integrate this strip from x is equal to 1 to x is equal to 4 to find the total area. So total area, if total area is represented by capital A, then capital A is equal to integration from x is equal to 1 to x is equal to 4 dA, and dA is y dx, and the value of y is, यहाँ पर क्या है, y square is equal to x है. तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें by taking square root on both the sides, then we will get y is equal to plus minus square root x. ये मिलेगा हमको. और क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, यहाँ पे गिवन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पर हम जो है सिर्फ y की पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे. So we will take y is equal to root x. So now we have a is equal to integration 1 to 4 root x dx. So now after solving this, we will get a is equal to integration of root x will be x raised to the power 3 by 2 upon 3 by 2 limit from 1 to 4. So
From here we will get 2 by 3. Putting the upper limit and the lower limit, we will get 4 raised to the power 3 by 2 minus 1 raised to the power 3 by 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 by 3. From here we will get square root of 4 is 2 and 2 raised to the power 3 is 8. 8 minus 1. So 8 minus 1 is 7. So 2 by 3 into 7, which means 14 by 3. And since we are finding the area, its unit will be square units. Clear? 14 by 3 जो भी सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. Now next question is, find the area enclosed between the parabola y square is equal to 4ax and the line y is equal to mx. तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक लाइन गिवन है y इज इक्वल टू mx. और हमें क्या करना है, इस कर्व, इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का जो एरिया है वो फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द फिगर. Let this is our parabola. Y square is equal to 4ax and this is our line y is equal to mx. Let us consider here that a and m are positive. कंसीडर कर लेते हैं कि a भी यहाँ पे पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है. तो अगर m पॉजिटिव होगा तो y is equal to mx जो लाइन होगी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगी. क्लियर? तो यहाँ पे हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि m भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है. a पॉजिटिव होगा तो जो पैराबोला है वो राइट साइड जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है उधर ओपन होगा. ठीक है. और अगर नेगेटिव होता तो इधर ओपन होता. तो क्योंकि यहाँ पे हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है दोनों, तो लाइन भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगी और ये पैराबोला भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा. क्लियर? तो अब इस कर्व पैराबोला और लाइन जो है इसके बीच में जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? दिस इज द गिवन एरिया, रिक्वायर्ड एरिया. ये एरिया हमको फाइंड करना है. इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे दो कर्व्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए ऑन द एक्स एक्सिस. दिस इज आवर ओरिजिन. एट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया है ये फाइंड कर ले पूरा हम. पैराबोला के नीचे का जो एरिया है, एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस, और उसमें से ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्ट्रिप्स कट करेंगे. ठीक है. अगर हमें पैराबोला के नीचे का एरिया फाइंड करना है तो एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे हम, वर्टिकल स्ट्रिप इस कर्व के नीचे पैरेलल टू y एक्सिस. लेट इट्स विड्थ इज dx एंड इट्स हाइट इज y1. क्योंकि यहाँ पे दो कर्व्स है, एक ये हमारा पैराबोला है, दूसरा लाइन है. तो लाइन के लिए जब स्ट्रिप कट करेंगे तो उसको हम y2 वहाँ पे हाइट लेंगे. और इस लाइन के नीचे जो स्ट्रिप कट कर रहे हैं इसकी हाइट सपोज कर लेते हैं क्या है, y2, और इसकी विड्थ क्या है, dx है. तो हमारे पास यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं और इनको इंटीग्रेट करना है हमें पॉइंट O से लेके पॉइंट A तक. तो क्योंकि हम इंटीग्रेशन अलोंग द एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए पॉइंट O पर और पॉइंट A पर. पॉइंट O का हमको पता है कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा, बट पॉइंट A के एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करना पड़ेगा बाई फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट B. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे इस लाइन का और कर्व का. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और सेकंड लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx. दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो इसको हम सॉल्व करेंगे. y इज इक्वल टू mx यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा mx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. नाउ फ्रॉम हियर वी विल गेट m स्क्वायर x square is equal to 4ax and it will imply
तो शिफ्ट करेंगे तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये मिल जाएगा हमको x इंटू एम स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x भी रहेगा। नाउ दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं और हमको दिख भी रहा है कि ये लाइन और कर्व 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर और पॉइंट B पर। तो पॉइंट O पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। यहाँ पे 0 0 होगा हमारा x भी और y भी। और पॉइंट B पर जो हमें x की वैल्यू मिल रही है क्या मिल रही है? 4a अपॉन एम स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हमको इसके बीच में इंटीग्रेट करना है। अब रिक्वायर्ड एरिया जो हमको फाइंड करना है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे? एरिया सपोज दैट जो रिक्वायर्ड एरिया है ए है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम पहले पैराबोला के नीचे। जो हमारी ये फर्स्ट स्ट्रिप है इसको इंटीग्रेट करेंगे ओ से लेके ए तक। तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 से इज इक्वल टू 4a बाई एम स्क्वायर तक इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? और इसका जो एरिया आएगा इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जिसकी हाइट y1 है वो क्या आएगा? y1 dx। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y1 dx माइनस क्या करना है? इस ट्राइंगल की वजह से जो एरिया फॉर्म हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, टोटल एरिया में से। ठीक है, तो इसका भी एरिया फाइंड करेंगे y2 की हेल्प से हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 0 to 4a बाई एम स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखेंगे? y2 dx। क्लियर? यहाँ पे यही किया गया है कि हमें पैराबोला का जो एरिया फाइंड करना है, इसके लिए हमने y1 स्ट्रिप यूज की थी जिसकी हाइट y1 है और इस स्ट्रिप का जो एरिया आता है एलिमेंट्री एरिया वो y1 dx आता और इसको इंटीग्रेट करते हैं हम पॉइंट O से A तक। तो ये वैल्यू मिलेगी हमको। और फिर ट्राइंगल का एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना है टोटल एरिया जो पैराबोला से मिला है, और उसके लिए हमारे पास स्ट्रिप की हाइट कितनी है? y2 और विड्थ कितनी है? dx। तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया y2 dx आएगा और इसकी वजह से जो एरिया मिलेगा इंटीग्रेशन के बाद O से लेके A तक उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। और क्योंकि दोनों में ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, दोनों ही इंटीग्रल्स में, और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम कॉमन ले सकते हैं इंटीग्रल ऑपरेटर को। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to 4a अपॉन एम स्क्वायर y1 माइनस y2 dx। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। आप डायरेक्टली इसी को लिखेंगे, इस सेकंड लाइन को। क्लियर? y1 माइनस y2, हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टेप माइनस हाइट ऑफ द सेकंड स्टेप। और y1 की वैल्यू, क्योंकि y1 का अपर टिप कहाँ पे है? पैराबोला पे है, ये जो स्ट्रिप है। तो y1 की वैल्यू पैराबोला से फाइंड करेंगे और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? प्लस माइनस 2√ax। और क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो y यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। तो अगेन यहाँ पे हम क्या लेंगे? y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 2√ax। और y2 तो हमारा लाइन है ये, ठीक है, y इज इक्वल टू mx, इस पे अपर टिप है इसकी। तो यहाँ पर y2 की वैल्यू क्या होगी? y2 इज इक्वल टू mx। So we will put y2 is equal to mx dx। क्लियर? अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ पे और लिमिट्स को पुट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस वी विल गेट 2 into √a और इंटीग्रेशन ऑफ √x क्या आ जाएगा? x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2। ये वैल्यू मिलेगी और फिर इसमें लिमिट पुट कर देंगे हम, लिमिट फ्रॉम 0 to 4a बाई एम स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस वी विल गेट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा 4/3 √a इंटू 4a बाई एम स्क्वायर पुट करेंगे x के प्लेस पे अपर लिमिट,
ये हो जाएगा 4a/m² होल रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस m/2 इंटू x², यहाँ पे x के प्लेस से पुट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 4a/m² होल स्क्वायर माइनस, और 0 पुट करेंगे तो दोनों ही जगह पे x है, दोनों ही टर्म्स में x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 आएगी वैल्यू, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ से 4/3, यहाँ से ये a की पावर हाफ और a की पावर 3/2, ये कितना हो जाएगा a की पावर 1/2 प्लस 3/2 इज 4/2 मीन्स स्क्वायर, और यहाँ पे 4 रेज़ टू द पावर 3/2 मीन्स 8 एंड m² की पावर 3/2 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको डिनोमिनेटर में m³ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ से m और ये आपका क्या है m² का स्क्वायर मीन्स m रेज़ टू द पावर 4, यहाँ से आ जाएगा 1/m³, डिनोमिनेटर में पहले से 2 है, और यहाँ पे क्या मिलेगा 4² मीन्स 16a²। So here we have m³ कॉमन इन द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में a² कॉमन है, तो यहाँ पर a²/m³ और 4 8 32, 32/3 माइनस here 2 8 16, so 16. Now we have a²/m³, 3 8 24, 32 minus 24 is 8, so we will get 8/3. So the final answer is 8a²/3m³ स्क्वायर यूनिट्स। कितना एरिया आएगा इसका, क्लियर? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही है, सबसे पहले आपको कर्व जो गिवन है उसको आप प्लॉट कर लीजिए, ठीक है, लाइन और कर्व जो भी दिया गया है दोनों को ड्रॉ कर लीजिए, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद फिर जो आपका अपर कर्व है उस पर एक स्टेप ड्रॉ करिए, और फिर जो लोअर कर्व है उस पर एक स्टेप ड्रॉ करिए, ठीक है, और अपर माइनस लोअर करेंगे। अपर स्टेप की अगर हाइट y1 है, लोअर स्टेप की अगर हाइट y2 है, तो अपर माइनस लोअर करेंगे, y1 माइनस y2 करेंगे, ठीक है। हमेशा ऊपर वाली कर्व में से नीचे वाली लेयर को, नीचे वाली कर्व को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर? और उसके बाद फिर आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करके फाइंड कर देंगे, क्लियर? So here are some questions. Practice these questions. Thank you.